Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. First of all, we will going to review whatever we have learned in the last week. So what we have learned in the last week? Something about the learning outcomes, Bloom's taxonomy, and cognitive domain. Afterward, we will going to discuss the issues with defining effective domain, and that is the key purpose of this presentation. Afterward, we will going to explain that the most common components of the effective domain are actually attitudes and values. What are attitudes and what exactly is value? We will going to define it. Last but not the least, I will going to describe you each levels of Bloom's effective domain and let you know what exactly is the meaning of each level and how they are different from each other. So whatever the material I have taken for this presentation, I have taken it from the articles. The references I have given below, you can take it from the internet, and definitely I will going to share these articles on the Google Classroom material. So let's start with the recap. The first thing that I want to give you a recap is the learning outcome. So exactly what are the learning outcome? We have gone through a lot about it. So let's see it with another perspective over here. Why we need another perspective of defining the learning outcome? This perspective is necessary to understand the effective domain. So learning outcomes क्या है और यहाँ किस तरीके से different लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं. What a person should be able to do at the end of his or her studies. हमने लास्ट वीक ये पढ़ा था कि लर्निंग आउटकम्स टीचर अपने रोज़ाना के लेसन प्लान में डेवलप करते हैं और वो रोज़ाना लिखते हैं कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा लूँगी या ये कंटेंट पढ़ा लूँगी तो स्टूडेंट्स में क्या क्या स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो जाएंगे. पर यहाँ ब्रॉडली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जब वो अपनी पूरी स्टडीज़ ख़त्म कर लेंगे. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन एक्चुअली मैंने हायर एजुकेशन के आर्टिकल्स में से उठाई है कि जब हमारे स्टूडेंट कॉलेज में आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो हम तब उनके लर्निंग आउटकम्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है. इन दोनों में फ़र्क है. सो अब हम इस डेफिनेशन को डीप इनटू जाते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या है. Learning outcomes are objective societal and occupational requirements formulated on the basis of competencies of a certain occupational standards. So learning objective क्या है? Learning objective हमारे colleges में और universities में हम वो बनाते हैं जिसके बाद हम आपको job market के लिए तैयार करते हैं. Let's take an example कि हमारा जो main course है वो actually teacher prepare कर रहा है, थिंकर प्रिपेयर कर रहा है जो एजुकेशन की फील्ड में होगा. सो एजुकेशन पढ़ने वालों की जॉब मार्केट है तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड. सो अब हमें उनके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन से एटीट्यूड्स और कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है ताकि जब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जॉब के लिए जाएं तो वो स्किल्स उनके अंदर मौजूद हों. और जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर वो स्किल्स को असेस करना चाहें तो स्टूडेंट वो स्किल्स और वो बिहेवियर शो करके दिखा सकें. और वो स्किल्स और बिहेवियर क्या है? दे आर ऑब्जेक्टिव सोसाइटल एंड ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट. डेफिनेटली वो बिहेवियर स्किल्स जो हम टीचर्स में डेवलप कर रहे हैं वही बिहेवियर स्किल्स हम मेडिकल पर्सनस में डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जॉब मार्केट में उनसे अलग किस्म की स्किल्स और एटीट्यूड रिक्वायर्ड है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग आउटकम कौन बनाता है? फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सर्टन ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड. सो जो भी ऑक्यूपेशन है, जिस भी प्रोफेशन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं उस प्रोफेशन में ऑलरेडी कॉम्पिटेंसीज के स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि एक टीचर में ये एलिमेंट्स मौजूद होनी चाहिए, ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. सो जो वो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती हैं जॉब मार्केट के लिए वही हम अपने कॉलेज में और अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे
हम अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं. So ये क्या है occupational standard? They are necessary to be achieved at the end of teaching study program in order to award a person certain qualification. ये वो important learning outcomes हैं जिनका by all mean students में develop होना ज़रूरी है ताकि उनकी basis पे उनको degree award की जा सके. So जब हम कोई degree award कर देते हैं तो हमारी assumption होती है कि इस डिग्री का पर्सन जो है या जो डिग्री होल्डर है उसमें ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंसीज होंगी. सो ये क्या हैं? ये वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमारे जॉब के इंस्टीट्यूशन के जो टाइकॉन्स होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं वो इनको बनाते हैं और बना के इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं कि आपने ऐसा फ्यूचर प्रोफेशनल बनाना है जिसमें ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हों. So that is a new view of learning outcomes. And why are we taking this new view of learning outcome? I will going to discuss with you just after few slides. Second recap, it is about the Bloom's taxonomy. So हमने जब define कर लिया था कि learning outcomes क्या होते हैं, तो learning outcomes के बाद जो last week हमारा second important discussion थी वो थी Bloom's taxonomy के ऊपर. So what we came to know about it, that Bloom taxonomy की 3 domains हैं. Bloom taxonomy ने बताया है कि जो हमारा पूरा learning स्कूल का 12 साल का या 12 साल से ज़्यादा प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 12 तक का की पर्पज़ है वो इन 3 domains में स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है और लर्निंग आउटकम्स को बनाना है. पहली है कॉग्निटिव डोमेन जो इन्वॉल्व करती है नॉलेज को एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल को. दूसरी है affective domain that we will going to discuss today, and that is actually talking about our emotions and feelings, importantly values, appreciation, enthusiasm, motivations and attitudes. और last हमारी Bloom taxonomy की domain है psychomotor domain जो हमारी school education students में develop करती है. और what it is include physical movement, coordination and use of the motor skills areas. Afterward, हमने Bloom taxonomy का cognitive domain को discuss किया था and what we came to know about it कि Bloom taxonomy के जो सबसे नीचे आपका level है that is a lower order thinking skill और जो सबसे ऊपर level है that is a higher order thinking skill. So cognition का itself मतलब क्या है? It is thinking, it is reasoning and it is decision making. So actually हम क्या इसके अंदर students में learning outcome achieve कर रहे हैं? How do they going to think about that specific content and how they will going to solve the problems related to that specific subject, specific topic and a specific content area. सबसे lower level पे हमारे पास था knowledge से बेहतर हमारा thinking level है comprehension का और comprehension से बेहतर thinking level है application, then analysis, synthesis और जो आपका highest order thinking process है जो हम अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट में डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज़ evaluation. Why? Because it is a requirement of the job market as well. So we have done all of this thing in the last week and I hope that you will going to get now the gist and recall everything. Here we come with our today's real topic. First of all, we will going to define the affective domain and it is not an easy job. Why? Because affective domain have so many different definitions and there are different point of views either to define it or not to define it. Let's take an example. The domain is so difficult to define because it is ambiguous and controversial. Why it is ambiguous? It is so difficult for people to actually make a consensus about the definition of the affective domain, that what exactly it is. So हमारे पास different psychologists और different educationists effective को itself multiple तरीके से define करते हैं और वो किसी एक consensus पे अभी तक नहीं पहुँचे. That's the reason it is ambiguous. And why it is controversial? कुछ educationists का कहना है कि it is subsumed into the cognitive or psychomotor objective. जब हम cognitive और psychomotor objectives students के अंदर develop करते हैं और student इनको develop कर लेते हैं तो automatically हमारी
अफेक्टिव डोमेन डेवलप हो जाती है। तो हमें इसे अलग से एड्रेस करना या अलग से इफ़ेक्टिव डोमेन के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि एट द अदर एक्सट्रीम हमारे कुछ एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दे आर सेइंग कि डेवलपिंग वंस ओन पॉजिटिव माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। उनका कहना यह है कि मोस्टली लोग जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा हो, उनकी थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की बहुत अच्छी हो, लेकिन वो जॉब में इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द पॉजिटिव माइंड सेट, एंड दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द इफेक्टिव डोमेन। सो एकेडमिक्स में नंबर लेने के लिए कॉग्निटिव डोमेन मे बी इज़ अ गुड, that what you know about that concept or content or the subject and what kind of problems that you can solve of that specific subject. Lekin, would you going to be successful in your job by learning all that stuff? It requires something else than cognition. And here the problems begin. Okay. What it requires effective domain. And it is hard to define exactly what it is. We need to go and check it out that how it is hard to define. So, Martin and Brinch, what they did, उन्होंने क्या किया, दे हैव गॉन थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, और जितने भी एजुकेशनिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इफेक्टिव डोमेन को डिफ़ाइन किया था, उनका ओवरव्यू, एक पिक्चर लेने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ इफेक्टिव डोमेन. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, लाइफ, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अबाउट द मोटिवेशन. Effective domain include interests, attitudes, beliefs, values. Effective domain is about self-esteem, morality, ego development, feelings, need achievement, locus of control, curiosity, creativity, independence, mental health, personal growth, group dynamics, mental imagery and personality, and so many other things. What does it mean by that? Is still different psychologists, still different educationists and researcher are defining it in different ways. So there is a easy way to say कि ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्टिव डोमेन में आती हैं, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि जब आप अपनी एक एकेडमिक प्रोग्राम ख़त्म कर लो और अगर आप में ये चीज़ें डेवलप हो जाएं, पॉजिटिव माइंड सेट और एटीट्यूड डेवलप हो जाए, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जॉब को इंजॉय भी करोगे और उसको सक्सेसफुली नेविगेट करोगे. लेकिन देयर इज़ अनदर वे टू डिफाइन अ इफेक्टिव डोमेन. Here it comes another definition. Why are we taking this definition? First of all, we need to discuss about it. So the another definition of effective domain is that effective domain actually have two key components. The one is attitude and the another one is the value. But why we are thinking कि इस definition को हमें लेना चाहिए, इसकी अहम वजह ये है कि मोस्टली एजुकेशनल रिसर्चर ने, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशन में इन दो वर्ड्स को यूज़ किया है. सो हम फॉर द सेफ साइड ये ले लेते हैं कि क्योंकि मोस्टली लोगों ने जब इफेक्टिव डोमेन को डिफ़ाइन किया है तो उसमें एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ का वर्ड्स इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है ये तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो सकते हैं. सो लेट्स टेक इट एंड सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. सो इफेक्टिव डोमेन के हमारे जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? Attitudes and value. What they are, give it a look. Number one is the attitude. Attitudes are actually the settled way of thinking and feeling about something. What does it mean by settled? कि वो आपके अंदर सरायत कर गया है और आप किसी चीज़ को जब भी देखते हो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हो, आपके दिल में उसके लिए वैसे ही फीलिंग्स आ जाती हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप एक छिपकली को देख के हर दफ़ा डर जाते हो तो कुछ दिनों बाद ये आपका एटीट्यूड बन जाता है कि जब आप छिपकली को देखोगे आपको एकदम खौफज़दा हो जाओगे, अब एकदम जो है आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे या उस जगह पे आप नापसंदीदगी और खौफ का इजहार करोगे. अब ये आपका वो एटीट्यूड है जो सेटल्ड हो चुका है और ये आपकी वो फीलिंग्स हैं, जब भी आप छिपकली को देखोगे उसके लिए आपकी वही फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी.
सो एटीट्यूड हमारी सैटल्ड फीलिंग्स हैं जो कि नहीं बदलती। जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हमारी वही फीलिंग्स सामने इमर्ज हो जाती हैं और ये हमारे सेट पैटर्न और हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड। आई हैव चूजन वन फॉर यू ओवर हियर। लेट्स रीड इट आउट। An attitude as a result of an activity that is conscious, reflective, experienced, and demandful for our volitional attention. That is, it is a product of consciousness. Okay, I need to define this example to you in another words. So, attitude हमारे कब develop होते हैं? Attitude हमारे तब develop होते हैं कि जब हम किसी भी एक्टिविटी को कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और उसके ऊपर मुस्तकिल सोच रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि इस एक्टिविटी से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस एक्टिविटीज़ की लिमिटेशन क्या है, इससे मुझे क्या हासिल होने लगा है, और फिर हम उसे बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर क्या होता है, वो आपसे आपका इंटेंशनल विलफुल अटेंशन मांग रहा होता है। और डेफिनेटली ये क्या है, आपकी एटीट्यूड, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आप अनकॉन्शियसली नहीं करते, ये बाकायदा आप सोच समझ के करते हो, अपनी अकल के साथ करते हो और विलिंगनेस के साथ करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि जो भी आएगा मैं उसे खड़ा होकर हाथ मिलाऊंगा और सलाम करूंगा, तो ये आपका क्या है, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो, ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो क्योंकि आप लोगों से खड़े होकर मिलना चाहते हो, उनको ग्रीट करना चाहते हो अच्छे तरीके से। आप इस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ये क्यों ज़रूरी है, लोगों को रिस्पेक्ट देना, उनको सलाम करना या उनको आगे बढ़ के मिलना या मुसाफा करना, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट and why it is important for you. So you are reflecting on it. Then you experienced and demandful. So क्या होता है कि आपने बाकायदा इसको एक्सपीरियंस किया है और आप इसको इंटेंशनली करना चाह रहे हो। ये अनकॉन्शियस नहीं है, आप इसको इंटेंशनली इसको डेवलप कर रहे हो। जब आप इसे कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये आपका सैटल्ड थिंकिंग और फीलिंग बन जाती है एवरी टाइम कि जब कोई आएगा, हाउ शुड आई नीड टू शो माई एटीट्यूड। सो देयर आर पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड देयर आर नेगेटिव एटीट्यूड्स जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। सो इफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स में कुछ एटीट्यूड्स डेवलप करना चाहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे सामने कहाँ लिखा हुआ है, जस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ एटीट्यूड, मोटिवेटिंग दोज अराउंड यू विद अ पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप कॉन्शियसली ये सोचते हो कि मैंने लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें डिस्करेज नहीं करना और उन्हें बकअप करना है, तो आप ये कॉन्शियसली करते करते, इस पर रिफ्लेक्ट करते करते आपको उसकी आदत हो जाती है। सो जब भी कोई आपके पास स्टूडेंट आता है जो डिसहार्ट होता है, जो क्विट करना चाहता है या जिसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा ये एटीट्यूड बन जाता है, सैटल्ड बिहेवियर बन जाता है, हम फ़ौरन उसको मोटिवेट करते हैं, फ़ौरन हम उसे पॉजिटिव वर्ड्स बताते हैं, हम उसे बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, हम उसे बताते हैं कि तुमने कैसे चैलेंजेस को कॉप अप किया एंड हाउ यू कैन डू इट, एंड देन दैट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अस। Just at the bottom of the definition there is a negative attitude. Some people just only see limitation in every other person. तो ये भी हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि जब हम कॉन्शियसली और रिफ्लेक्शन के साथ लोगों में जानबूझ के गलतियां निकालने लगते हैं और हमेशा हम उनकी लिमिटेशन देखते हैं और स्ट्रेंथ नहीं देखते, तो आहिस्ते आहिस्ते अनकॉन्शियसली ये हमारा बिहेवियर बन जाता है और ये हमारा इफेक्टिव डोमेन का एटीट्यूड बन जाता है। So now we will going to start with the values. Let's take a definition of the value. Values are complex and enduring. Then the attitudes. So attitudes को बदलना आसान है लेकिन वैल्यूज़ को बदलना आसान नहीं है। ये ना सिर्फ एटीट्यूड की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं बल्कि ये ज़्यादा पायदार हैं। दे आर मोर enduring and durable. Let's take an example and the definition of a value from this specific perspective of Halder. Refer to rules, orientation, behavioral norms necessary for individual's lifestyle and social common life. So what Halder is talking about कि अगर हम सोसाइटी में वैल्यूज़ को देखें तो वैल्यूज़ एक्चुअली वो रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे बिहेवियर नॉर्म्स इस सोसाइटी में रहने के लिए क्या होंगे।
और हमारे वही बिहेवियर नॉर्म्स क्या कहलाते हैं, वो हमारा लाइफ स्टाइल होता है। और सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग उसी लाइफ स्टाइल के आदी होते हैं एंड दे आर द सोशल कॉमन लाइफ। अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि मुसाफा करने की, ग्रीडिंग करने की। अगर सोसाइटी में इस चीज़ को वैल्यू दी जाती है और इसे पसंद किया जाता है कि जब भी आप किसी से मिलें तो आप खड़े होकर उससे हाथ मिलाएं और सलाम में पहल करें, तो आप ये समझें कि ये सोसाइटी की वैल्यू है और ये उसका रूल है। और ये वो बिहेवियर नॉर्म है जो जब भी आपके सामने आपका कोई टीचर आएगा, बुजुर्ग आएगा, कोई और आएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे सलाम करोगे। और आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब भी कोई नया बंदा आपके सामने आएगा या आपसे कोई मिलने आएगा, वो आपको सलाम करेगा। सो ये बिहेवियर नॉर्म्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इनको रूल्स बनाया है और ये हमारी सोसाइटी की वो वैल्यूज़ हैं, वो जजमेंट है जो सोसाइटी पसंद करती है। देन इट्स बिकम आवर लाइफ स्टाइल। दैट्स हाउ वी ग्रीट पीपल, दैट्स हाउ वी मीट पीपल। और ये हमारी कॉमन सोशल लाइफ का हिस्सा है, ये वैल्यू सिस्टम। इसी तरीके से हम वैल्यू सिस्टम में ये देख सकते हैं मेहमान नवाजी, कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे चाय ज़रूर पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? इट्स काइंड ऑफ अ रूल। ये एक बिहेवियर नॉर्म्स है कि आपके घर कोई मेहमान आया तो आपने उसको चाय या ठंडा तो ज़रूर ही पिलाना है। ये कोई कंपल्शन नहीं है। दैट इज़ काइंड ऑफ अ हिडन रूल बाय द सोसाइटी जहाँ आप रहते हैं। और ये हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है और ये हमारी सोशल कॉमन लाइफ का हिस्सा है। तो ये क्या है? ये वैल्यू है, क्योंकि ये लार्जर सोसाइटी का हिस्सा होती है और सोसाइटी में तमाम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एंड्यूरिंग, और इसको चेंज करना आसान नहीं है। What else? It should be followed by people in their value judgment of relevant phenomena when thinking, controlling their action. सो वैल्यू क्या करती है कि अनकॉन्शियसली हमारे इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है और हम उस वैल्यू की वजह से स्पेसिफिक थिंकिंग करने लगते हैं और हमारे एक्शंस डिटर्मिन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे का ये वैल्यू है और ये कॉमन हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर नॉर्म है कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो आपको मेहमान के तौर पे चाय या ठंडा ज़रूर पिलाया जाएगा। लेकिन आप किसी के घर जाते हैं और ना तो वो आपको चाय पूछता है, ना वो आपको ठंडा पूछता है, तो अब आपकी थिंकिंग और आपका एक्शन क्या होगा? और वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि आप उस मेज़बान के बिहेवियर को उस सोसाइटी के वैल्यू ओरिएंटेशन में देखेंगे और आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि जो उसका एक्शन है वो आपके साथ अच्छा नहीं है और हो सकता है आप दोबारा उसके घर ना जाएं या किसी और से जाके शिकायत करें कि जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझे ना ठंडा पूछा ना गर्म पूछा। सो दैट्स हाउ आपकी वैल्यू सिस्टम हमारी सोच और हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है। लाइक एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। Let's take example of a positive value that is just written in yellow under the heading of values. Responsibility on your action, mistakes and life situation. So एक वैल्यू किसी माशरे की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी स्कूल की, किसी जॉब प्लेस की ये भी हो सकती है कि वहाँ की वैल्यू ये हो कि उसके एम्प्लॉयज़, उस माशरे के लोग या उस स्कूल के स्टूडेंट और टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। और ये उस स्कूल का अगर वैल्यू सिस्टम होगा, ये उनका बिहेवियर नॉर्म होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर नॉर्म, और वहाँ मेजॉरिटी लोग अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आदी होंगे, तो उनका क्या होगा? एक्शन ऑन योर एक्शंस, ऑन योर मिस्टेक्स एंड कंट्रोल योर लाइफ सिचुएशन। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अपने एक्शंस की, कि चाहे उससे जो भी अच्छा या बुरा आउटकम आए वो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, you are a responsible person, you can move on in a better way. So this has become an behavioral norm, expected behavior norm of the institution, and that is a positive value. जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये आपकी वैल्यू सिस्टम बन जाता है, जो शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जो उससे भागता है, उसके बारे में हमारी थिंकिंग और हमारे एक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। Let's take another example of negative values, and that is written at the bottom of the definition. A belief that in the world only the strong survive.
अगर किसी माशरे का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी घर का, किसी जगह का ये वैल्यू सिस्टम बन जाए और बिहेवियर नॉर्म ये एक्सपेक्टेड हो और लोगों का कॉमन सोशल बिहेवियर ये बन जाए, वैल्यू सिस्टम ये बन जाए कि उनका बिलीव ये हो जाए कि सिर्फ इस दुनिया में वो लोग सरवाइव करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। What do you we mean by strong? Let's say वो लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो हाउ इट विल गोइंग टू कंट्रोल आवर थिंकिंग एंड एक्शन। इसका मतलब ये हो जाएगा इस बिलीफ सिस्टम से कि हम सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत करेंगे और सिर्फ उनको आइडियलाइज करेंगे और हमें लगेंगे कि तमाम अच्छे लोग अमीर होते हैं, तमाम सक्सेस सिर्फ पैसा और दौलत कमाने को कहते हैं और किसी भी किस्म की दूसरी सक्सेस नहीं होती। वो लोग जो किसी और किस्म की सक्सेस हासिल करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता, लाइक वो अपनी एकेडमिक्स में एक्सेल करते हैं, अपने प्रोफेशन में लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम में उन लोगों की रिस्पेक्ट रिगार्डलेस नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम, इट्स अ वैल्यू just to respect and just to believe in that only the strong survive। तो हमारी थिंकिंग क्या बन जाती है? हमें ये लगता है कि ये शख्स कितना भी अच्छा काम कर रहा है, अगर ये पैसा नहीं कमा रहा तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब ये वैल्यू सिस्टम क्या कर रहा है? हमारी थिंकिंग कंट्रोल कर रहा है और ये हमारे एक्शंस भी कंट्रोल करेगा। हम अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट, हम अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट उन लोगों के ऊपर ज़्यादा करेंगे और हम गरीब लोगों को या फाइनेंशियली वीक लोगों को कमतर समझेंगे और उनकी रिस्पेक्ट कम करेंगे। ये क्या है? ये हमारे एक्शंस हैं। That's how actually value embedded in a society. And society can be the bigger society, your home, your institution, your classroom, and your job place. And that's how every job place, every institution have some values. And these are the values that actually are the rules, orientation, behavioral norms necessary for individual lifestyle and social common life. So this is one of the most important two components of effective domain when we are going to define it. Here it comes, actual Bloom's effective domain and its levels. So हम यहाँ देख रहे हैं कि like cognitive domain, effective domain में भी Bloom's ने हमारे पास 5 hierarchies रखी हैं। In the same way, जो सबसे निचले लेवल पे है वो सबसे छोटी डोमेन है, वो सबसे इनिशियल एंड सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड करने वाली डोमेन है और जैसे जैसे डोमेन ऊपर जाती जा रही है, रिस्पॉन्स टू फिनोमेना, वॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनलाइजेस वैल्यूज, वैसे वैसे वो डोमेन स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है, वो ज़्यादा आपसे एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा है वो लेवल। हमने इनको यहाँ पे देख लिया। लाइक द ब्लूम टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव लेवल, आपकी सबसे नीची लेवल जो है वो क्या है? रिसीविंग फिनोमेना इन द फैक्टर डोमेन, और सबसे हायर क्या है? इंटरनलाइजिंग वैल्यू। So we will going to study each and every domain separately and see how it will going to work. The first level of Bloom's effective domain, that is receiving or attending. Exactly what it is? It is the lowest level of effective domain. Number 2, it refers to student willingness to take interest in some phenomenon or something in the environment. A person consciously receives information, listens willingly and attentively. So what exactly it is? In other words, receiving और attendant का मतलब ये है कि जब कोई स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक चीज़ अपने इन्वायरमेंट में देखता है या कोई चीज़ उसको ट्रिगर करती है जो उसे पहले नहीं पता होती और उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है, तो वो विलिंगली उस चीज़ को सुनने को, उसको समझने को, अटेंटिवली उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पे लेट्स टेक अ एग्जांपल अबाउट द पंक्चुअलिटी। जब टीचर क्लास में बताती है कि पंक्चुअलिटी से हमें क्या मिलने वाला है कि अगर आप रोज़ाना क्लासरूम में फॉर अ मंथ टाइम पे आएंगे और आप कभी भी लेट नहीं होंगे, तो आफ्टर 1 मंथ आपको एक होमवर्क की एग्जाम्शन मिलेगी और आपको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया जाएगा और आप मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट का भी अवार्ड ले सकेंगे।
तो टीचर ये बताती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ पंक्चुअलिटी, और स्टूडेंट विलिंगली उसको सुनते हैं, शौक से सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं। तो ये आपकी इफेक्टिव डोमेन का पहला लेवल है कि वो क्या कहलाता है, दैट इज़ रिसीविंग एंड अटेंडिंग। सेकेंड लेवल इज़ रिस्पॉन्डिंग. It signifies a more visible activity of a student. इसके अंदर स्टूडेंट्स की मोर विजिबल एक्टिविटी नज़र आती है. नज़र आने से मतलब ये कि डेफिनेटली वो बिहेवियर और फिज़िकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग में स्टूडेंट की सिर्फ अटेंशन होती है. हम ये देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट मुतवज्जा हैं, वो इंटरेस्टिंग है, वो विलिंग है, लेकिन वो कोई एक्शन ओरिएंट नहीं कर रहे. A student does take interest in the environment and also willingly participate in the activities, take initiative, and is satisfied with the responsibility to be active. सेकेंड लेवल पे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, वो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं उस एक्टिविटी में और इनिशिएट लेते हैं, खुद से आगे आते हैं. और जब वो खुद से आगे आके वो काम कर लेते हैं तो उन्हें वो काम करने के बाद सेटिस्फैक्शन भी होती है और खुशी भी होती है. वो ये नहीं समझते कि ये हमने काम क्यों किया और इस काम का हमें कोई फ़ायदा नहीं. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ पंक्चुअलिटी. जब टीचर ने उन्हें पंक्चुअलिटी के बारे में बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है कि हम जिस वक्त का हमें टाइम दिया गया है हम उसकी पाबंदी करें और हम इसको फॉलो अप करें, इससे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, इससे पता चलता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. स्टूडेंट विलिंगली क्या करें, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. वो कोशिश करें कि वो स्कूल टाइम पे आएँ और लेट ना हो, और वो इस काम के लिए खुद इनिशिएट करें. वो अपनी मदर के साथ कन्विंस करें कि मैं खुद उठूँगा, आप अलार्म लगाएं, और वो अपनी माँ से पहले उठें और वो कहें कि लेट्स गेट रेडी, वी नीड टू गो टू द स्कूल ऑन द टाइम. और जब वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हों तो वो खुश हों, वो मुतमईन हों, वो सेटिस्फाइड हों कि यस आई एम डूइंग इट. A student consciously reacts to the environment and expresses his or her attention in a respective manner. So, student क्या करता है, वो कॉन्शियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इस फिनोमेना को, और उसकी पूरी अटेंशन जो होती है वो उस चीज़ के ऊपर होती है. सो दैट इज़ अ सेकेंड लेवल दैट इज़ बिगर देन the first one, and that was attending, and this one is responding. It is action oriented. The third level is valuing. That refers to the attachment of the value to some phenomenon, object, activity, etc. A student is not merely an active participant, but she also recognizing the values as well as assume the meaning and importance of the activities she is involved in. So हमारा सबसे पहला लेवल क्या था, रिसीव, जहाँ स्टूडेंट की सिर्फ अटेंशन जाती है और वो विलिंगली आपको सुनने को तैयार होता है. सेकंड लेवल था रिस्पॉन्ड. अब आपको सुन ही नहीं रहा, जो आप उसे एक्टिविटीज़ या टास्क दे रहे हो उसमें वो इनिशिएट कर रहा है, वो खुद से आगे बढ़ रहा है, विलिंगली उसे करना चाहता है, और जब वो कर लेता है तो उसको खुशी महसूस होती है, उसको सेटिस्फैक्शन महसूस होती है. अब उससे बेहतर लेवल क्या है इफेक्टिव डोमेन का, कि अब वो जो एटीट्यूड है और जो वैल्यू सिस्टम है वो उसको थर्ड लेवल पे ले आया. स्टूडेंट ना सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बल्कि वो एक्चुअली ओन कर रहा है और रिकग्नाइज कर रहा है कि इस वैल्यू की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम इम्पोर्टेंस है जिस एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हियर अगेन द पंक्चुअलिटी. यहाँ वो क्या करेगा, जब वो वैल्यू देगा, ऑलवेज ट्राई टू कम अहेड ऑफ अ गिवन टाइम. वो हमेशा जो उसको टाइम दिया जाएगा वो उस टाइम पे पहुँचने की कोशिश करेगा या उससे पहले पहुँचेगा, ताकि दूसरे को इंतज़ार ना करना पड़े और वो अपनी कमिटमेंट पे पक्का रहे. सो अब ये चीज़ें उसका रिस्पॉन्ड नहीं है, अब उसका वैल्यू सिस्टम बनता जा रहा है. Student attitude changes from a mere acceptance of the value to the commitment to comply with it. अब वो इस वैल्यू को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ वर्बली जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहा, वो इसे अपनी कमिटमेंट का हिस्सा बना रहा है. जब भी कोई एटीट्यूड आपकी कमिटमेंट का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अब आपके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन रहा है. The behavior of a student demonstrate if the value is acceptable for him or her.
स्टूडेंट जब टाइम पे आता है, टाइम से पहले आता है, या जहाँ भी उसने अपने दोस्त के साथ कमिटमेंट की होती है वो हमेशा वक्त से पहले वहाँ पहुँचता है और वो अपने टाइम पे पहुँचने की कमिटमेंट को पूरा करता है, तो इसका मतलब क्या है? ये उसका बिहेवियर है जो डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि उसे ये वैल्यू पसंद है, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी, वक्त पे आना। सो उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो किस किस्म की वैल्यूज़ को पसंद कर रहा है। लेवल 4, ऑर्गेनाइजेशन brings the value into the system. अब स्टूडेंट रिसीव कर चुका विलिंगली, उस पर रिस्पॉन्ड कर चुका एक्शंस के साथ, अब उसकी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन चुका जहाँ वो इसको इम्पोर्टेंस देता है, इसे पसंद करता है और प्रेफर करता है कि इसको बार बार इस्तेमाल किया जाए मल्टीपल ओकेजन पे, लाइक पंक्चुअलिटी. नाउ एट द फोर्थ लेवल the value system will going to be a part of another kind of a system. What it is? A student arranges values, relate and synthesizes them, identify priorities that help him her solve internal moral conflicts. A person compares different values, set relationships among them, generalize and join them into the entirety. वॉट एग्जैक्टली इट मीन्स बाय कि जैसे जैसे हम ग्रोन अप करते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते जाते हैं, बड़े ग्रेड्स में जाते हैं, बड़े जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, या हमारी जॉब प्लेस चेंज होती जाती है और हम बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में कोई एक टाइप का वैल्यू सिस्टम नहीं है, मल्टीपल टाइप की वैल्यू सिस्टम है. सो वहाँ आपको ये भी पता चलता है कि अगर हम वक्त पे ना जाएं और थोड़ा बहुत लेट हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे लोग ही लेट आते हैं. नाउ दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू विद योर वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी. सो आप क्या करते हैं कि आप दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं, आप रिलेट करते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज दैट हेल्प यू टू सॉल्व इंटरनल मोरल कॉन्फ्लिक्ट. जहाँ आपके सामने कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू आ गई है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि विच वन इज़ अ बेटर वन, how should I manage my value system? So in the organizational phase, हम punctuality ही की example लेते हैं, and how a person who is at the organizational phase of punctuality, what they will going to do? They will going to schedule their event. They set realistic time frame for their task. These are the behaviors and attitudes that a person who is practicing punctuality will do at the level 4, that is organization. And that is the last and the top level affective domain. Most complex level of the affective domain it is, and that is internalization. Values control a person, and a person behavior depends on the value system. So we already discussed about it कि जो हमारी values होती हैं वो हमारी सोच और हमारे एक्शन दोनों को कंट्रोल करती हैं, और जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे वैल्यू सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल, हमारा वैल्यू सिस्टम कहता है कि जब भी कोई बंदा आप देखें या आपके घर मेहमान है तो आप उसे सलाम करें. सो आपका बिहेवियर ये होगा, आप ऑटोमेटिकली उसे सलाम करोगे. हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि आप उसे खाने पीने की चीज़ें सर्व करें, तो आप फ़ौरन उसे खाने पीने की चीज़ें सर्व करोगे. अगर आपका वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लें, टू द पॉइंट रहें, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, टू द पॉइंट रहोगे. दैट्स हाउ actually values control a person and their behavior. When the behavior for a long time is determined by the same value, a person develops the worldview based on specific characteristics. जब हम एक बहुत अरसे तक एक वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वही वैल्यूज़ जो है हमारा सोचने का तरीका बन जाती हैं. A person develops the worldview based on a specific characteristic, and she forms special individual learning ways. The student's behavior becomes predictable, typical and consistent in similar situations. जब वैल्यू आपकी इंटरनलाइज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप पंक्चुअलिटी अब आपके अंदर इंटरनलाइज हो चुकी है और आपकी बिहेवियर में ये ऑटोमेटिक हो चुकी है. अब आप इसको कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली कर रहे हो, प्रैक्टिस कर करके, तो ये आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है. मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ कि आप लोगों ने इस तारीख तक ये असाइनमेंट जमा करा देनी है, तो मुझे पता होगा
कि अगर मेरा स्टूडेंट ए बहुत पंक्चुअल है, डेडलाइंस फॉलो करता है, तो मैं प्रिडिक्ट कर दूंगी कि, या मैं सेफली प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ये स्टूडेंट बाय ऑल मीन अपनी डेडलाइन से पहले अपनी असाइनमेंट ख़त्म करके मुझे भेज देगा। या अगर मैंने किसी स्टूडेंट को या अपने कोलीग को बुलाया जो कि बहुत ही पंक्चुअल है, एंड आई नो दैट कि ये उसका इंटरनलाइज बिहेवियर है, चाहे मैं लेट भी हो जाऊँ तो जो टाइम मैंने उसे दिया है वो उस टाइम पर पहुँच जाएगा, तो ये क्या है, दैट इज़ माई प्रोडिक्शन। जब इंटरनलाइजेशन की फेज तक हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड पहुँच जाता है, दैन इट इज़ प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे द गुड वैल्यूज़ एंड द बैड वैल्यूज़, अगर हमें पता हो कि कोई शख्स झूठ बोलता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस बारे में झूठ बोलेगा। अगर हमें पता हो कि कोई शख्स ऑनेस्ट है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इसे पैसों का काम देंगे या हम इसे फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये अपनी ऑनेस्ट राय देगा और पैसों के बारे में डेड ऑनेस्ट रहेगा। सो इंटरनलाइजेशन इफेक्टिव डोमेन की वो फेज़ है जहाँ पे जो आप वैल्यू और एटीट्यूड सीख रहे थे रिसीविंग की फेज़ पे, अब वो आपके अंदर रच बस चुका है, लाइक योर ब्लड, and that's the reason it is very much predictable okay, what next you can do. Let's take an example over here, the same punctuality. With the internalization, what person will going to do? They stay organized. They don't procrastinate. So जब आपको punctuality की आदत हो जाती है और वो आपके internalize हो जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसके बाद ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है कि आप हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हो, आप हमेशा प्लानिंग करते हो, आप हमेशा टाइम मैनेजमेंट करते हो और आप कभी भी काम को डिले नहीं करते, आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। सो दैट्स बिकम अ पार्ट ऑफ यू और हम इसको बहुत आराम से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। नाउ हियर is managing time poorly. That is actually the other example of the same stages of effective domain. अब इसके अंदर क्या है, हमने अभी तक पंक्चुअलिटी को डिस्कस किया इफेक्टिव डोमेन के तमाम लेवल्स पे, और पंक्चुअलिटी जो है वो एक्चुअली एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पंक्चुअलिटी एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेट्स टेक कि क्या हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही देख सकते हैं? जी नहीं, हम नेगेटिव वैल्यूज़ और एटीट्यूड को भी देख सकते हैं। जब हम अपने टाइम को पोअरली मैनेज करते हैं तो रिसीविंग लेवल पे एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट डोंट सी हाउ अ प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू देम एंड डोंट अंडरस्टैंड द मटीरियल। एट द रिसीविंग लेवल स्टूडेंट अनविलिंगनेस शो करते हैं आपको सुनने के लिए, आपकी तरफ अटेंटिव होने के लिए और उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए जो फॉर एग्जांपल एज अ टीचर आप उन्हें देने जा रही हैं, और वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते, उनको नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट करने में उन्हें कोई मज़ा आएगा या इससे उन्हें कोई ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा मिलने वाला है। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिवली रिसीविंग, नाउ दे आर नेगेटिवली रिसीविंग। अदर लेवल, रिस्पॉन्डिंग, ईदर डेवलप द प्रोजेक्ट एट द लास्ट आवर और नॉट एट ऑल। तो रिस्पॉन्डिंग क्या है, एक्शन, वो अपने एक्शन में दिखाते हैं। अब एक्शन में ये होगा कि जो आपने डेडलाइन दी होगी प्रोजेक्ट के लिए, स्टूडेंट या तो उसको आखिरी मोमेंट में बनाएंगे या बनाएंगे नहीं, और आखिरी मोमेंट में बनाने का नुकसान ये होगा कि वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं होगा और उसमें बहुत सी गलतियाँ मौजूद होंगी। अगर स्टूडेंट इसी बिहेवियर को कैरी ऑन करते रहे, इसी एटीट्यूड को कैरी ऑन करते रहे, इसी वैल्यू को अपनाते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता दे विल गोइंग टू गिविंग इट अ वैल्यूइंग। व्हाट डज इट मीन बाय कि वर्क एट द लास्ट मोमेंट। अब उन्हें चाहे आप वो असाइनमेंट दें जो उन्हें पसंद है, चाहे आप उन्हें वो असाइनमेंट दें जो उन्हें नहीं पसंद, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ कमिटमेंट हो, फैमिली के साथ कोई प्रोजेक्ट की कमिटमेंट हो, कोई पर्सनल प्रोफेशनल या एकेडमिक काम हो, वो हर काम को वैल्यू देंगे बिकॉज दे लाइक इट नाउ कि they were going to do it at the last moment. Other level क्या होगा, इसको करते करते it's become a part of their organization. Procrastination, motivation, confidence and comprehension issues. Organization level पे क्या होगा कि जब वो मल्टीपल लोगों को वैल्यू सिस्टम उनके सामने आएगा तो वो सबसे पहले क्या करना शुरू करेंगे, उन वैल्यूज़ को देखते हुए
उनको दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बेहतर ये है कि हम इसे डिले करें, आज का काम कल पे करें, कल का काम परसों पे करें, अभी डेडलाइन में 5 दिन है, मेरे पास बहुत दिन है, आई कैन डू इट टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। दैट इज़ नॉन एज प्रोक्रास्टिनेशन। क्यों करते हैं ये? इसलिए क्योंकि हमें मोटिवेशन की कमी होती है, हम अनविलिंग होते हैं ये करने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमें ये लगता है कि शायद हम करेंगे तो हमसे ये होगा नहीं। और अदर इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज होते हैं, जो टास्क हमें दिया जाता है एक्चुअली वो हमें समझ ही नहीं आता, उसकी हमें समझ ही में नहीं आती कि एक्चुअली व्हाट इट इज़। दैट्स द रीज़न हम उसको डिले करना शुरू कर देते हैं। और डिलेइंग हैबिट और प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती है। देन द लास्ट स्टेज जहाँ पे ये एटीट्यूड पक्का हो जाता है एंड बिकम आवर फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज़ अ लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन। और वहाँ पे क्या होता है? पुअर वर्क क्वालिटी। कि चाहे आप एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज अ प्रोफेशनल हो, चाहे एज अ कमेडिशियन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के प्रोजेक्ट्स हों या काम हो, हर जगह हमारे लिए ये चीज़ अहमियत ही नहीं रखती कि वी नीड टू गिव अ गुड क्वालिटी वर्क। अब हम ये इंटरनाइज कर चुके हैं कि हमें अच्छा क्वालिटी का वर्क करने के लिए जो एफर्ट, जो एनर्जी, जो टाइम पुट इन करना है, जो प्लानिंग करनी है, जो मैनेजमेंट करनी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारा काम चल जाता है बुरी क्वालिटी के काम से तो दैट इज़ फाइन। और फिर हम हर काम में कभी भी एक्सेल और अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड फ्लैश, it become internalized. That's how affective domain is so important. It is about attitudes. It is about value system जो हमारी थिंकिंग को और वही थिंकिंग हमारे एक्शंस को डिटर्मिन कर रही है। दैट्स द रीज़न हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लर्निंग आउटकम में प्रोफेशनल्स बताते हैं कि जॉब के लिए हम चाहते हैं कि आपके पास आउट हुए हुए ये प्रोफेशनल, उनमें ये वैल्यू सिस्टम और ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स होने चाहिए ताकि वो जॉब को सक्सेसफुली फुल मोटिवेशन, फुल गुड क्वालिटी वर्क के साथ परसू कर सकें। What else in the affective domain? Is it easy to attain them? And what school can do? How we will going to assess कि ये affective domain students में develop हुए या नहीं हुए, ये positive attitudes या belief system और value system हुआ या नहीं हुआ. These are important questions that we will going to discuss in our next discussion. So far, thank you so much.